For discussion of the phase rule, there is also help is taken from the Clausius-Clapeyron equation in order to explain some of the graphs. What is Clausius-Clapeyron equation? This is equation that can be applied for the any two phases which are present in equilibrium with each other. In order to derive the Clausius-Clapeyron equation, we will use the first law of thermodynamics and the second law of thermodynamics and Gibbs free energy relationship. So first equation which I have written here, first law of thermodynamics, what is that? Heat supplied to a system, it is Q reversible. Reversibly, when heat is supplied to a system, it is utilized in changing the internal energy of the system and in doing some expansional work, that is PdV. That is the first law of thermodynamics. And the second law of thermodynamics is when heat reversibly it is transferred to a system at a particular temperature T, then it is equal to change in the entropy. That is the second law of thermodynamics. Another relation which is written down here, that is G is equal to, it is H minus Ts. It is Gibbs free energy, that is G, that is H, it is enthalpy, minus T is the temperature, S is the entropy. Entropy is the measure of the randomness. We know enthalpy, that is equal to E plus PV, internal energy plus pressure volume product. So when I substitute this value in the relation above, then Gibbs free energy is equal to E plus PV minus Ts. And notifying a complete change in the free energy, dZ, it becomes equal to the dE, change in internal energy. Then differential of PV is there, it is PdV plus BDP. Then differential of minus Ts is there, it is TdS minus SdT. As we discussed above, that dE plus PdV, that is the first law of thermodynamics. Where? It is here. dE plus PdV, that is equal to Q reversible. So here I have changed dZ equal to Q dE plus PdV as Q reversible. Also I have placed the value of TdS. From where? It is again from the second law. T को आप पहली से ले जाइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, Q reversible, that is equal to TdS. So when you will substitute that value here, I will get dZ equal to Q reversible plus BDP minus Q reversible minus SdT. Q reversible goes with the Q reversible, you are left with the BDP minus SdT. This relation which is down here written, this relation has been directly utilized in the books for the derivation of the Clausius-Clapeyron equation. लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये रिलेशन कहाँ से आया है. मेरे ख्याल से सेकंड जो बुक है वो आपकी थर्मोडायनेमिक्स उसमें इन्वॉल्व है, तो थर्मोडायनेमिक्स का नॉलेज आपको होना जरूरी है. इसीलिए मैंने ये रिलेशन आपको यहाँ पर डेरिवेशन जो है वो शो की है कि किस तरह से डेरिवेशन इसकी की जा सकती है. Now how we can apply this equation for the phases which are present in equilibrium. So suppose phase 1 and phase 2, they are in equilibrium with each other. Small change in the free energy, it is written by this relation. ये जो ऊपर वाला relation है इसमें एक phase के लिए मैंने इस तरह से लिख ली, उसी तरह से दूसरे phase के लिए मैंने इसके लिए free energy change लिख ली. Then I take the subtraction of these two, difference of these two, then dZ2 minus dZ1 is equal to B1 dP minus S1 dt and V2 dP plus S2 dt. And when you will rearrange all these equation, you will get differential of delta Z, that is equal to delta B into dP minus delta S into dt. When you are having this equation, then you will put delta Z equal to 0 because phases are in equilibrium with each other. जैसे कि phases equilibrium में है तो delta G की वैल्यू आपने 0 पुटअप कर देनी है. इसका मतलब जो आपके पास रिलेशन है delta V dP minus delta S dt, that will equal to the
0. From here we can write dp upon dt that is equal to delta s upon delta v. That is the basic equation here which is utilized for the Clausius-Clapeyron equation. Now again I will use the second law of thermodynamics. It is q reversible upon t that was equal to ds. Here I am taking delta s, ds for the small change, delta s for the larger change. So डेल्टा s की वैल्यू मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है ऊपर. तो यहां से अगर आप डेल्टा s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो then dp upon dt change in pressure with respect to change in temperature, it becomes equal to q reversible upon t into delta v. Now I will substitute the value of q reversible. q reversible के लिए मैंने डेल्टा h प्लेस किया है. यहां पर डेल्टा h इसीलिए प्लेस किया है, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम या तो इंटरनल एनर्जी के चेंज के इक्वल होती है या फिर वो चेंज इन एंथैल्पी की इक्वल होती है. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो देन क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डेल्टा ई, और अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो क्यू रिवर्सिबल इक्वल टू डेल्टा एच. मोस्टली लैब में जितने भी रिएक्शंस कैरी आउट किए जाते हैं दे आर नॉट कैरीड एट कांस्टेंट वॉल्यूम बट दे आर कैरीड एट कांस्टेंट प्रेशर. So Q reversible here it is being taken as delta H. So that forms the basic equation of the Clausius-Clapeyron. This is the basic equation dP upon dt that is equal to delta H T into delta V. Now how it is being applied to the some equilibrium. So for the equilibrium that solid is melting and it is changing into the liquid. तो solid melt हो रहा है तो delta H जो है वो latent heat of fusion आ जाएगी. क्या आ जाएगी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. और नीचे T जहां है वहां पर मैंने TF लिख रखा है. दैट मीन्स टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन, टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग, मेल्टिंग पॉइंट है ये. क्या है ये? मेल्टिंग पॉइंट. देन डेल्टा V के लिए चेंज इन वॉल्यूम, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है. सो फाइनल वॉल्यूम आएगा लिक्विड का, इनिशियल वॉल्यूम आएगा सॉलिड का. जब आप उसको लेस करोगे BL माइनस BS दैट इज चेंज इन वॉल्यूम. In the same sense, if it is applied for the boiling of the liquid, then it will be delta H of fusion. Instead, it will be delta H of vaporization. क्या आ जाएगा यहाँ पर? Delta H of vaporization because solid is in equilibrium with the vapors now. और जो नीचे ऊपर मेल्टिंग पॉइंट था टेम्परेचर फ्यूजन दैट विल चेंज इनटू द बॉइलिंग पॉइंट TV. इट इज BG माइनस BL, वॉल्यूम ऑफ द गैस, वेपर्स का वॉल्यूम, माइनस BL दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड दैट इज इक्वल टू डेल्टा V. तो इस तरह से इस इक्वेशन को जो है वो सॉलिड चेंजेस, लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर्स जो है वो उसके लिए अप्लाई किया जा सकता है. द सेम इक्वेशन कैन बी अप्लाइड फॉर द same equation can be applied for sublimation of the liquid, that solid sublimation of a solid directly changing into the vapors. So here delta H sublimation आ जाएगा जहां पर delta H vaporization था. नीचे temperature of the sublimation TS minus BG minus BS, volume of gas, this is the volume of the vapors. ये फाइनल है तो इसका वॉल्यूम पहले आएगा माइनस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. तो इस तरह से तीन इक्वेशन जो हैं तीन इक्विलिब्रियम के लिए जो वो आप डिस्कस कर सकते हो. दैट इज द क्लासियस-क्लेपेयन इक्वेशन. वाटर का जब हम फेज डायग्राम डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम जो है वो इसको यूटिलाइज करेंगे. बाकी में हमने इसको कम यूटिलाइज करना है. एग्जाम में केवल डायरेक्ट इक्वेशन आएगी आपको दैट व्हाट इज क्लासियस-क्लेपेयन इक्वेशन एंड हाउ यू कैन डिराइव इट. So that will be asked in the examination. May and may not be possible because phase rule, components, what is phase, degrees of freedom are far more important than the Clausius-Clapeyron equation. Now coming back to the phase rules. So the diagram here, this is the one component system and it is the water that we will discuss here.
सो दैट इज द फेज डायग्राम ऑफ वाटर। तो सबसे पहले तो इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि फेज डायग्राम क्या क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले इसका ग्राफ को अगर हम स्टडी करते हैं तो इस साइड प्रेशर की वेरिएशन है, नीचे आपके पास टेम्परेचर की वेरिएशन है। मींस P इज वेरिंग विद द T, प्रेशर और टेम्परेचर जो वो वेरी कर रहे हैं। तो अभी हमने क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन भी डिस्कस की। व्हाट वाज दैट? चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन टेम्परेचर मींस द इक्वेशन कैन बी अप्लाइड फॉर द डिस्कशन ऑफ द फेज डायग्राम ऑफ द वाटर। यहां कंसंट्रेशन टर्म कहां गई? कंसंट्रेशन टर्म यहां पर नहीं आ रही है क्योंकि सिंगल कंपोनेंट है। चाहे आपने 10 ग्राम लिया है तो भी फेज डायग्राम वैसा आएगा, चाहे आपने 20 ग्राम ले रखा है तो भी फेज वैसा आएगा, चाहे 30 ग्राम ले रखा है तो भी वैसा आएगा। सो देर इज नो कंसर्न ऑफ द कंसंट्रेशन, मीन्स वी आर मेनली कंसर्न हियर विद द फेज डायग्राम ऑफ द वाटर। सबसे पहले टेम्परेचर है यहां पर नीचे देखो -273 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द पॉइंट ए। नीचे नीचे पॉइंट है यहां पर -273 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द एब्सोल्यूट जीरो। उसके बाद एक और पॉइंट है, दैट टेम्परेचर इज 0.0098 डिग्री सेल्सियस। क्या ये 0.0098 डिग्री सेल्सियस पर्टिकुलर टेम्परेचर है। उसके बाद एक और टेम्परेचर मैंने ले रखा है 374 डिग्री सेल्सियस। तो पहले तो टेम्परेचर की एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं यहां पर। यानी मैंने स्टार्ट किया एब्सोल्यूट जीरो से। कहां से स्टार्ट किया? एब्सोल्यूट जीरो से। फिर एक वेरिएशन दी है मैंने एब्सोल्यूट जीरो से लेकर के 0.0098 डिग्री सेल्सियस तक, विच इज दिस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जीरो होती हैं। कैसे होती हैं कैसे नहीं होती हैं वो डिस्कशन में अभी आएगा। उसके बाद एक और टेम्परेचर ले रखा मैंने, दैट इज 374 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द वाटर। क्या बोल रहा हूं मैं इसको? क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द वाटर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या चीज होती है ये हमने पिछली क्लास में वैसे डिस्कस किया है। व्हेन यू आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए लिक्विड एंड ए गैसियस सिस्टम, व्हेन इट इज बिकम्स होमोजीनियस। आपके पास लिक्विड भी है और आपके पास वेपर्स भी हैं, लेकिन एक शार्पर लाइन अगर आप उनमें ड्रॉ नहीं कर सकते हो इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश कि ये लिक्विड है और ये गैस है या ये वेपर्स हैं, तो उस स्टेट को बोलते हैं हम 374 डिग्री सेल्सियस। कौन सा टेम्परेचर है ये? 273 पे जो है 273 दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, उस पे वाटर मेल्ट होता है। उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? बॉयल होता है। तो 273 में 100 ऐड कर दो, कितना हो गया? 373। इसका मतलब दिस टेम्परेचर इज 101 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट से 1 डिग्री ऊपर है, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से 1 डिग्री। इसका मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वाटर का 101 डिग्री सेल्सियस पे आता है। इस टेम्परेचर पे आप जो है वो दोनों फेजेस में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि कहां वेपर्स हैं और कहां पर वाटर है। क्लियर हो गया ये? इस साइड प्रेशर लाइन पे मैंने दो प्रेशर्स लिंक किए केवल। एक 4.58 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दूसरा ऊपर 218 एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स हैं। तो दोनों में की खासियत है कोई ना कोई कि 4.58 पे जो है वो 3 फेजेस को एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से? सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा और वेपर्स भी होंगे। तीनों फेज जो क्या करेंगे? को एग्जिस्ट करेंगे। किस पे? दे आर एग्जिस्टिंग एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड द प्रेशर विच इज द वैल्यू। टेम्परेचर इज 0.0098 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज 4.58 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। These are the particular pressure and temperature conditions at which solid, liquid and vaporous water exist। तीनों फेज जो वो इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं। इनमें से एक भी कंपोनेंट वेरी कर दोगे, चाहे प्रेशर चाहे टेम्परेचर, एक आध उनमें से जो आपका फेज है वो गायब हो जाएगा। सो दिस इज ए नॉन वेरिएंट सिस्टम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है? 0 है। इनको हमने कैलकुलेट भी करना है।
ऊपर 218 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने बार शो किया है। इसकी भी यहाँ पर ये स्पेशल पॉइंट्स हैं कि ये ग्राफ जो है एक्स बाई एक्सिस की तरफ झुका हुआ है। कौन सा? बीसी लाइन। इफ यू आर एबल टू चेक इट, जो बीसी लाइन है दैट इज इंक्लाइंड टुवर्ड द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की तरफ जो है वो झुकी हुई है। इसका मतलब अगर इसको हम ऊपर की तरफ और ले जाएं तो कोई ना कोई स्टेज ऐसी आनी चाहिए जहां पर ये किसके साथ अटैच हो जानी चाहिए, बाई एक्सिस के साथ लिंक हो जानी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। थोड़े टाइम के लिए ये वाई एक्सिस की तरफ शिफ्ट होती है और उसके बाद अगेन इट शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द वाई एक्सिस। वो ग्राफ में अभी तक यहां पर डिस्कस बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। जब भी आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो सबसे पहले तो ये ग्राफ आपके पास ड्रॉ करना आना चाहिए। कौन सा? ये कलर नहीं जो मैंने ड्रॉ कर रखे हैं। मैंने कलर वेरिएशन इसलिए शो की है कि कहां वेपर है, कहां आइस है, कहां वाटर है, उसको सेग्रीगेट करने के लिए कलर शो किए हैं। अदरवाइज कलर शो करने का कोई मतलब नहीं है। यू मस्ट नो द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर, प्रेशर, लाइन्स, कि ये लाइन किस तरह से ड्रॉ करनी है और किस तरह से नहीं ड्रॉ करनी है। अब आती है बात कि कैसे इसको हमने डिस्कस करना है। तो ग्राफ आपको पूरा याद होना चाहिए, तब आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं ए से बी लाइन तक। वेयर आई एम गोइंग टू डिस्कस पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी में जो है वो क्या चीज है आपके पास? एक साइड तो आपके पास नीचे ग्रीनिश पोर्शन है, ये वाला वन साइड इट इज ग्रीनिश पोर्शन। कौन सा? ये नीचे जो ब्लूइश या ग्रीनिश पोर्शन नजर आ रहा है ये वेपर्स हैं। तो ए बी लाइन के एक तरफ वेपर्स हैं और दूसरी तरफ जो वो सॉलिड है। कौन सा? ऊपर वाला, दैट इज द आइस। ए से लेके बी तक, इस ए प्राइम में मत जाओ, ये ए और ये बी। तो एक साइड इसके वेपर्स है, एक साइड इसके क्या है? सॉलिड है। सो इट मीन्स along the line AB, two phases are there. One is vapor, another is the solid. अब आती है लाइन B to D. B to D में ऊपर मैंने वाटर लिखा है, दैट इज द लिक्विड, नीचे वेपर्स है। इसका मतलब यहां भी इस लाइन के उरे परे B से लेके D तक दो फेजेस इक्विलिब्रियम में है। एक साइड वेपर्स है, दूसरी साइड क्या है? वाटर है। और अगर लाइन BC अगर आप डिस्कस करें, B to C, इस साइड लिक्विड है और इस साइड आपके पास आइस है। तो पहले यहां पर मैंने लाइन बीसी ही डिस्कस की है। सो लाइन बीसी में क्या है? आइस दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद द वाटर, लिक्विड वाटर। सो आइस दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड वाटर। ये वन कंपोनेंट सिस्टम है। केवल आइस पानी है तो पानी जो है वो या वाटर जो है वो वन कंपोनेंट सिस्टम आएगा। सो कंपोनेंट इज वन। फेजेस दो हो गए आपके पास। कौन कौन से? आइस सॉलिड फेज आ गया और लिक्विड वाटर जो है वो लिक्विड फेज आ गया। तो P की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 2 आ गई। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर इक्वल टू 1 minus 2 plus 2. It is C minus P plus 2. That is the Gibbs phase rule. F is equal to C minus P plus 2. So substituting that value you will get the value 1. It means system is univariant. इसका मतलब है कि आप प्रेशर और टेम्परेचर में से एक ही कंपोनेंट वेरी कर सकते हैं। We are only able to vary either P or T because system is univariant. In the same manner line AB, ये रही लाइन AB नीचे, एक साइड इसमें जो है वो वेपर्स हैं और दूसरी साइड आपके पास क्या है? आइस है। सो आइस इज इन इक्विलिब्रियम विद द वेपर्स, दैट इज द सब्लिमेशन कर्व। क्या बोलेंगे इसको? सब्लिमेशन कर्व। ऊपर बीसी लाइन थी, उसको बोलेंगे फ्यूजन कर्व या मेल्टिंग पॉइंट कर्व। बी से सी, एक साइड आइस दूसरी साइड वाटर, और ए टू बी दैट इज द सब्लिमेशन कर्व। तो कंपोनेंट 1 है वाटर, आइस एक फेज हो गया, वेपर्स दूसरा फेज हो गया, P की वैल्यू 2 आ गई। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू C minus P plus 2, that is equal to 1. Again it is a monovariant. It means either you can vary the pressure or you can vary the temperature. So that is the line here
AV. In the same manner we can discuss the line B to D. B to D जो है वो भी क्या आएगी, यूनिवेरिएंट आएगी आपके पास, क्योंकि एक साइड वाटर है दूसरी साइड क्या है, वेपर्स है. Let us discuss some of the areas. Where are the areas? अब जैसे एरिया हमने डिस्कस करना है तो ये वाटर वाला एरिया डिस्कस कर लेते हैं. वाटर वाला एरिया कौन सा है आपके पास, बी सी और डी. बी सी डी जो है पिंकिश जो पोर्शन यहां पर नजर आ रहा है दैट इज द वाटर हेयर. तो इसमें सारा का सारा क्या है, पानी है. तो इसका मतलब क्या है, फेज वन, बिकॉज ओनली वाटर इज देयर. सो इन द एरिया कंपोनेंट वन, फेज वन, so substitute the value, you will get the degrees of freedom value 2. It means system is y variant. इसका मतलब है कि ये जो वाटर जहां पर मैंने लिखा हुआ है इसमें आप प्रेशर भी वेरी कर सकते हैं, इसमें आप टेम्परेचर भी वेरी कर सकते हैं. बोथ कैन बी वेरिड बिकॉज सिस्टम इज वाई वेरिएंट. इसी तरह से दूसरा एरिया एवीसी डिस्कस करना है आपने या एवीडी डिस्कस करना है. एवीसी में जो है वो आइस है, एवीडी नीचे के जो है क्या आ रहा है आपके पास, वेपर्स आ रहे हैं. तो जितने भी आपके पास एरियाज हैं दे आर वाई वेरिएंट हेयर. नाउ कमिंग टू द ट्रिपल पॉइंट. ये जो पर्टिकुलर पॉइंट वी है यहां पर, दिस इज द ट्रिपल पॉइंट. यहां तीनों लाइंस आपस में मिल रही हैं. कौन सी, आइस वाली लाइन भी आ रही है, ऊपर से वेपर्स वाली और लिक्विड वाली लाइन भी आ रही है, नीचे से एवी लाइन भी आ रही है. तीनों लाइन यहां पर क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं. किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे. तो बी पॉइंट को बोलेंगे हम ट्रिपल पॉइंट. क्या बोलेंगे हम, ट्रिपल पॉइंट. एट दिस ट्रिपल पॉइंट इट इज आइस दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद द वाटर, इज इन इक्विलिब्रियम विद द वेपर्स. इसका मतलब आपके पास फेजेस कितने हो गए, 3. कंपोनेंट कितने हैं, 1. इट इज द वाटर. सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1 - 3 + 2 इज इक्वल टू 0. इट मीन्स सिस्टम इज नॉन वेरिएंट. तो ये फिक्स्ड वैल्यू है इनकी. टेम्परेचर जो है 0.0098 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. प्रेशर की वैल्यू 4.58 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए. कोई एक भी कंपोनेंट अगर आप वेरी करते हैं तो दूसरा फेज वहां से गायब हो जाएगा. इस पॉइंट की वैल्यू अलग है. जो थर्मामीटर्स होते हैं आपके वो ट्रिपल पॉइंट के ऊपर बेस्ड होते हैं. जो सेंटीग्रेड का थर्मामीटर है वो आर्बिट्रेरी 2 वैल्यूज ली गई हैं, 0 और 100, और उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है 100 में, जिससे आपके पास सेंटीग्रेड स्केल का थर्मामीटर बनता है. दूसरा सेल्सियस स्केल का थर्मामीटर है. सेल्सियस स्केल में जो है लोएस्ट पॉइंट जो है थर्मामीटर में ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को लिया गया है, 0.0098 डिग्री सेल्सियस.